ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ شارق ایک پتھر سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوڑتے دوڑتے تھک کر گر پڑا ہو۔ اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں اور جسم پسینے میں شرابور تھا۔ پسینہ اس کے جسم پر کیچوے کی طرح رینگ رہا تھا۔ وہ سوتے میں گھبراہٹ سی محسوس کرنے لگا اور پھر دفتن اس کی آنکھ کھل گئی۔ تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پتھر تپ رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گھوڑے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ شارق ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ سب لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ حالانکہ رات کو انہوں نے اسی جگہ کیمپ لگایا تھا اور وہ ان سے چند گز ہٹ کر پتھر سے ٹیک لگا کر سو گیا تھا، لیکن اب دور دور تک ان میں سے کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی شارق کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ صبح اٹھ کر روانہ ہو گئے ہوں؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن ان کا اس طرح غائب ہونا بھی حیرت انگیز تھا۔ شارق گھوم پھر کر ایک بار پھر اسی جگہ آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس کی رائفل پتھر کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ اس نے رائفل اٹھا کر کندھے پر لٹکا لی اور بار بار ان سب کے نام لے کر آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز کی باز گشت پہاڑوں میں گونج رہی تھی، لیکن اسے جواب کسی طرف سے نہ ملا۔ شارق کا گھوڑا بھی غائب تھا۔ اس نے تقریباً آدھے میل کے علاقے میں گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا، لیکن کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا جہاں گھوڑے کی لد پڑی تھی۔ یہ جگہ ان کے کیمپ سے تقریباً 200 گز دور تھی۔ شارق کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو انہوں نے گھوڑے اپنے کیمپ کے قریب ہی باندھے تھے، لیکن جہاں گھوڑے کی لد کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دفتن اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس جگہ گھوڑے کی لد دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ جہاں بھی گئے تھے اسی راستے سے گئے تھے۔ اس نے رائفل کندھے پر درست کی اور اس راستے پر چل پڑا۔ مزید 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک جگہ اور گھوڑے کی لد نظر آئی۔ وہ اس راستے پر چلتا رہا۔ یہ چٹانوں کے درمیان کشادہ درہ نما راستہ تھا۔ تیز دھوپ سے چٹانیں تپ رہی تھیں اور شارق کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جہنم کے کسی خطے میں سفر کر رہا ہو۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئی تھیں۔ شارق نے تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کا نام لے لے کر آوازیں بھی دیتا رہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اس درے سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفتن وہ چونک گیا۔ اسے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کہیں پانی گر رہا ہو۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر آواز کی سمت میں چلنے لگا۔ ایک چٹان کے پیچھے پہنچ کر وہ رک گیا۔ سامنے پتھروں میں تقریباً 10 فٹ کی بلندی سے پانی کی پتلی سی دھار بہہ رہی تھی۔ پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں گر رہا تھا۔ گڑھے میں گرنے والا پانی نیچے ہی کہیں غائب ہو رہا تھا، کیونکہ وہ آس پاس کسی طرف بھی بہتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گڑھا تقریباً 3 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ شارق گڑھے کے کنارے پر بیٹھ گیا اور جھک کر جانوروں کی طرح منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ پانی سے پیٹ بھرنے کے بعد اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پتھر کے ساتھ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ حواس کسی قدر بحال ہوئے تو اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ صورتحال کافی سنگین تھی۔ اگر اس کے ساتھی نہ ملے تو وہ ان پہاڑوں میں بھٹکتا رہے گا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک پیاس سے دم توڑ دے گا۔ لیکن اسے حیرت تو اس بات کی تھی کہ اس کے ساتھی کہاں چلے گئے تھے۔ کیا وہ لوگ اسے بھول سکتے تھے؟ اپنے اس خیال پر شارق کو ہنسی آ گئی۔ وہ لوگ اسے کیسے بھول سکتے تھے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کہیں محمد عمر نے غداری تو نہیں کی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ محمد عمر اس کے ساتھیوں کو گن پوائنٹ پر کہیں لے گیا ہو سکتا ہے اس نے شارق سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کیا ہو اور شارق کو یہاں چھوڑ کر انہیں ساتھ لے گیا ہو۔ وہ اکیلا بھی جا سکتا تھا، لیکن 2 جوان اور حسین لڑکیوں کا ساتھ اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ عورت دنیا کے ہر خطے میں مرد کی کمزوری رہی ہے۔ محمد عمر کو یہ یقین رہا ہوگا کہ اگر وہ اکیلا گیا تو کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا، اس لیے اس نے دونوں لڑکیوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ پکڑے جانے کی صورت میں ان دونوں لڑکیوں کو رشوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، شارق نے سر جھٹک دیا۔ محمد عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے دل میں کوئی بات ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے کھل کر سامنے آ چکا ہوتا۔ اس نے تو تور خان کی مخالفت کر کے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد بھی قدم قدم پر اس کے ساتھ رہا تھا۔
वो उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। शारिक काफी देर चट्टान के साए में बैठा रहा। उसने उठकर एक बार फिर पानी पिया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। घोड़ों के निशान साबित कर रहे थे कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, लेकिन शारिक के ख्याल में उन्हें पा लेना आसान नहीं था। वो लोग घोड़ों पर गए थे और ये पैदल चल रहा था। वो लोग अब तक न जाने कहां पहुंच चुके होंगे। अगर ये इसी तरह इन बंजर और वीरान रास्तों में भटकता रहा तो उसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। वो चलता रहा। सूरज सर पर आ गया था। चट्टानें अंगारों की तरह तप रही थीं। भूख प्यास और गर्मी से वो निढाल हो रहा था। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। कंधे पर लटकी हुई राइफल भी उसे बोझ महसूस हो रही थी। उसने कई मर्तबा सोचा कि इस बोझ को कहीं फेंक दे, लेकिन हर मर्तबा इरादा बदल दिया। किसी मुश्किल वक्त में राइफल ही उसके काम आ सकती थी। धूप की शिद्दत में अगरचे कमी आ गई थी, लेकिन चट्टानें अभी तक तप रही थीं। एक छोटी सी चट्टान के ऊपर से घूमकर वो अचानक ही एक छोटी सी नदी के सामने पहुंच गया। पानी देखकर शारिक की प्यास भड़क उठी। उसने नदी में छलांग लगा दी। उसने खूब जी भर के पानी पिया और देर तक नदी में बैठा रहा। जब वो बाहर निकला तो उसके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा और फिर उठकर नदी के साथ साथ चलने लगा। न जाने उसे ये उम्मीद क्यों थी कि ये छोटी सी नदी उसे किसी न किसी बस्ती तक पहुंचा देगी। सूरज गुरूब हो रहा था। शाम होने वाली थी। शारिक सुबह से अब तक चलता रहा था। खाली पेट पानी पी पी कर उसे उबकाइयां सी आने लगी। रास्ते में कोई जानवर भी उसे नजर नहीं आया था जिसे शिकार करके वो अपना पेट भर सकता। वो चलते चलते गिर पड़ा। उसमें अब उठने और मजीद चलने की हिम्मत नहीं रही थी। अब अंधेरा फैलने लगा था। शारिक नदी के किनारे पर पड़ा रहा। थकन और भूख से वो बुरी तरह निढाल हो रहा था और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ही देर के बाद वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका था। दफतन उसकी आंख खुल गई। वो फायर की आवाज थी जिसकी बाज़गश्त अब भी पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक एक झटके से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। चांद अभी नहीं निकला था। हर तरफ तारीकी थी। वो अपनी जगह पर बैठा ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि आवाज किस तरफ से आई थी, लेकिन बाज़गश्त की आवाज भी अब खत्म हो चुकी थी। शारिक के जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा। उसके साथ ही आसपास ही कहीं मौजूद थे और गोली यकीनन उन्हीं में से किसी ने चलाई थी। वो उठकर इधर उधर दौड़ने लगा। उसने एक दो आवाजें भी दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। फायर की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा पूरा ब्रस्ट मारा गया। आवाज की बाज़गश्त फिर पहाड़ों में गूंज रही थी। शारिक ने अपने कंधे से राइफल उतार ली और उसका रुख आसमान की तरफ करके ट्रिगर दबाना ही चाहता था कि किसी और ख्याल के तहत उसने उंगली ट्रिगर से हटा ली और राइफल नीचे झुका ली। वो फायर करके अपने साथियों को अपनी मौजूदगी की इत्तला देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर इरादा बदल दिया कि हो सकता है ये उसके साथ ही ना हो, खाना बदोश हो या पहाड़ों में गश्त करने वाली पुलिस हो जिसने उसके साथियों को घेर लिया हो। ऐसी सूरत में उसका मोहतात रहना ही बेहतर था। वो राइफल हाथ में पकड़े एक तरफ दौड़ने लगा और फिर दफतन वो रुक गया। नशेब में तकरीबन 100 गज के फासले पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था। आग की रोशनी में एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी। कुछ लोग इधर उधर चलते फिरते नजर आ रहे थे। 5-6 आदमी अलाव के गिर्द रक्स कर रहे थे। शारिक एक जगह पर बैठकर उस तरफ देखने लगा। उसी लम्हे फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। आग के अलाव के पास खड़े हुए एक शख्स ने आसमान की तरफ राइफल का ब्रस्ट मारा था। आसमान की तरफ जाती हुई गोलियां साफ नजर आई थीं। शारिक गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। वो खाना बदोशों की बस्ती थी और खाना बदोश कोई जश्न मना रहे थे। दफतन शारिक चौंक गया। उसकी नजरें अलाव के दाईं तरफ कुछ लोगों पर जम गईं और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसने नौलखे और समीना को पहचान लिया। उनके साथ शापरी और मोहम्मद उमर भी थे। नौलखे और मोहम्मद उमर के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उन चारों को 2 आदमियों ने अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। ये मंजर देखकर शारिक के दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और पूरे जिस्म पर च्यूंटियां सी रेंगने लगी। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर वाजे होने लगी। गुज़श्ता रात उसके साथी किसी तरह उन कबाइलियों की नजरों में आ गए थे। वो लोग उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ ले आए थे। शारिक खुद उनकी नजरों में नहीं आ सका होगा, इसलिए बच गया, वरना वो भी उनके साथ यहाँ बंधा होता। शारिक को अपने साथी मिल गए थे, लेकिन सूरत हाल खासी संगीन थी। उसके 2 साथी बंधे हुए थे। समीना और शापरी अगरचे आजाद थी, लेकिन शायद वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शारिक को अंदाजा नहीं था कि इन कबाइलियों की तादाद कितनी थी। वो खुद अकेला था। राइफल में एक भरा हुआ मैगजीन था और बेल्ट में तकरीबन 20 गोलियां थीं। कोई कार्रवाई करने से पहले ये अंदाजा लगाना जरूरी था कि उसके मुकाबले पर कितने लोग हैं। वो अपनी जगह पर बैठा कुछ देर तक नशेब में देखता रहा, फिर वहां से हटकर दाईं तरफ चलने लगा। वो एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर ऐसी जगह पर आ गया जहां से उसके साथी ज्यादा नुमाया नजर आ रहे थे।
उस तरफ उसे एक और चीज नजर आ गई। एक पत्थर पर गालिबन कबीले का सरदार बैठा हुआ था और उससे कुछ फासले पर अलाव के एक किनारे पर दहकते हुए कोयलों पर बकरे या दुम्बे रोस्ट किए जा रहे थे। शारिक को 2-3 औरतें भी घूमती हुई नजर आईं। शारिक दूसरी तरफ निकल गया। इस दौरान शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि इन खानाबदोशों की तादाद 15 और 20 के दरमियान थी। औरतें इनके अलावा थीं। कोई बच्चा उसे नजर नहीं आया था। शारिक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों को किस तरह छुड़वाए। अंधाधुंध फायरिंग करना हिमाकत ही होती। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 आदमियों को मार सकता था। बाकी लोग उसे भून कर रखते थे। नहीं, वो ये हिमाकत नहीं कर सकता था। वो घूमता हुआ खैमों की तरफ निकल आया। कुल 8 खैमे थे। एक खैमा बड़ा था। दफतन शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। अपने साथियों को छुड़ाने की तरकीब उसके जहन में आ गई थी। अगर वो किसी एक खैमे को आग लगा दे तो कबाइलियों की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाएगी और वो अपने साथियों को छुड़ा लेगा। वो अपनी जेबें टटोलने लगा। खुशकिस्मती से माचिस उसकी जेब में मौजूद थी। गुज़श्ता रात नौलखे ने आग जलाई थी तो गैर इरादी तौर पर शारिक ने उससे माचिस लेकर अपनी जेब में डाल ली। उसने जेब से माचिस निकाली, उसे खोल कर टटोल कर देखा। उसमें चंद ही तीलियां थीं और खैमे के मोटे कपड़े को माचिस की तीलियों से आग लगाना मुश्किल था। उसने इधर उधर देखा, कुछ खुश्क झाड़ियां जमा की और एक खैमे के करीब आ गया। सब लोग खैमों के सामने की रुख पर अलाव की तरफ थे। शारिक ने झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे जमा कर दी और तीली जलाकर उन्हें शोला दिखाने लगा। तीली बुझ गई। दूसरी तीली से झाड़ियों को आग न लग सकी, हालांकि झाड़ियां खुश्क थीं। शारिक का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर कोई कबायली इस तरफ निकल आया तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। उसने तीसरी तीली जलाई। इस मर्तबा उसे नाकामी नहीं हुई। झाड़ियों ने आग पकड़ ली। शारिक ने झाड़ियां इस तरह समेट दी कि उन्हें अच्छी तरह आग लग सके। झाड़ियों की खुश्क शाखें जलते हुए चटक रही थीं। शारिक ने जलती हुई झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे डाल दी और जब कपड़े ने आग पकड़ ली तो वहां से हटकर दबे कदमों दौड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। वो चक्कर काटकर उस जगह आ गया जहां उसके साथी बंधे हुए जमीन पर बैठे थे। वो उनके पीछे तकरीबन 10 गज के फासले पर पत्थरों के पीछे बैठा कभी कबायलियों को देखने लगता और कभी खैमों की तरफ। कबायलियों का रक्स जारी था। वो फारसी या दर्री जबान से कुछ गा भी रहे थे जिसका एक लफ्ज भी शारिक के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बार बार खैमों की तरफ देख रहा था और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। खैमों के पिछली तरफ आखिरी खैमे से शोले बुलंद होने लगे। उसी लम्हे औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख चीख कर कुछ कह रही थी। कबायलियों का रक्स थम गया और फिर देखते ही देखते तमाम कबायली खैमों की तरफ दौड़ने लगे। पत्थर पर बैठा हुआ सरदार भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया। वो उन 2 कबायलियों की तरफ मुड़ने लगा जिन्होंने नौलखे वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। उसने तेज लहजे में उनसे कुछ कहा और फिर खुद दौड़ता हुआ खैमों की तरफ चला गया। अब वहां सिर्फ 2 कबायली रह गए थे जिन्होंने नौलखे वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। शारिक ने राइफल संभाल ली और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। उन कबायलियों से चंद फुट के फासले पर पहुंचकर वो रुक गया। शारिक ने टूटी फूटी फारसी में कहा, तुम दोनों अपनी राइफलें फेंक दो वरना छलनी कर दूंगा। इतने दिनों से अफगानिस्तान में रहते हुए वो थोड़ी बहुत फारसी सीख गया था। एक कबायली तेजी से पीछे मुड़ा। शारिक ने एक लम्हा जाया कि बगैर गोली चला दी। वो कबायली चीख कर ढेर हो गया। गोली उसके सीने में लगी थी। दूसरे कबायली ने राइफल फेंक दी। आग ने दूसरे खैमे को भी लपेट में ले लिया था। तमाम कबायली उस तरफ जमा थे। उनके शोर में शारिक की चलाई हुई गोली की आवाज पर किसी ने तवज्जो न दी। ऐसे में वो किसी गड़बड़ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समीना और शाहपरी उसके कुछ कहने से पहले ही हरकत में आ चुकी थी। उन्होंने नौलखे और मोहम्मद उमर के हाथ खोल दिए। शारिक बोला, राइफलें उठा लो। और घोड़े कहाँ हैं तुम लोगों के? कबायलियों की राइफलें एक चबूतरे पर पड़ी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर एक एक राइफल उठा ली। मोहम्मद उमर ने कहा, इस तरफ आओ, जल्दी करो। घोड़े उस चट्टान के पीछे बंधे हुए हैं। शारिक बोला, इन लोगों का क्या किया जाए? शाहपरी ने कहा, इन्हें साथ ले चलो, चट्टान के पीछे ले जाकर गोली मार देंगे। शाहपरी कबायलियों को अपनी राइफल की जद पर लेते हुए गुर्राई, चलो खामोशी से चलते रहो। वो कबायली खामोशी से उनके आगे चल दिए। चट्टान के पीछे पहुंचकर वो रुक गए। यहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे। उन्होंने एक एक घोड़ा खोल लिया। मोहम्मद उमर कबायलियों को बांधना चाहता था मगर शारिक बोल पड़ा, एक को बांध कर यहीं डाल दो, दूसरे को साथ ले चलो। हमें कुछ इल्म नहीं है कि हम किस जगह पर हैं। ये कबायली हमारी रहनुमाई करेगा। मुनासिब फासला तय कर लेने के बाद इसे भी रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। मोहम्मद उमर ने कहा, ठीक है। अगर इन लोगों ने हमारा पीछा भी किया तो ये एक बंदा हमारे पास यरगमाल रहेगा। उस कबायली के हाथ पुश्त पर बांध कर उसे भी घोड़े पर डाल दिया गया। मोहम्मद उमर उसके पीछे बैठ गया और उन्होंने घोड़ों को हाँक दिया। ठीक उसी वक्त कबायलियों को भी हकीकत का पता चल गया, लेकिन आग कई खैमों तक फैल चुकी थी। वो आग बुझाने की फिक्र में लगे हुए थे।
उन्हें कैदियों के भाग जाने की परवाह नहीं थी, इसलिए किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की। चांद निकल आया था। मोहम्मद उमर वाला घोड़ा सबसे आगे था, उसके पीछे समीना, शाहपरी के घोड़े, उनके पीछे नौलखा और आखिर में शारिक का घोड़ा था। चांदनी की वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, रास्ता भी ज्यादा दुश्वार नहीं था, इसलिए घोड़े मुनासिब रफ्तार से दौड़ते रहे। आधी रात के लगभग उन्होंने घोड़े रोक लिए। वो उस वक्त खासी बुलंदी पर थे। दाईं तरफ नशेब में बहुत दूर टिमटिमाती हुई मध्यम सी रोशनियां नजर आ रही थीं। कैदी कबायली ने बताया कि वो बाबा खेल नामी एक छोटी सी बस्ती है, वहां से एक रास्ता सरोबी की तरफ भी जाता है। वो लोग घोड़ों से उतर आए। शारिक के ख्याल में वो बस्ती कम से कम 5 मील दूर जरूर होगी। घोड़ों से उतरकर वो लोग इधर उधर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गए। शारिक ने कबायली से पूछा, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि बस्ती से बचकर सरोबी की तरफ निकला जा सके? कबायली ने मुंह से एक तरफ इशारा किया, बोला उस तरफ तकरीबन 2 मील आगे दरिया की दूसरी तरफ 2 रास्ते हैं। वहां से एक रास्ता सरोबी की तरफ जाता है और दूसरा दर्रा मंगरो ताई नराई की तरफ जाता है। नौलखा बोला, किसकी ताई की बात कर रहे हो खान? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी की ताई की बात नहीं कर रहा, ये जगह का नाम है। फिर कबायली की तरफ रुख करके बोला, ये दर्रा मंगरो ताई नराई कहाँ पर है? कबायली बोला, जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर। शारिक ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें दरिया तक अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। खाना बदोश ने मुल्तजी लहजे में कहा, मेरे हाथ खोल दो, मैं बड़ी अजियत महसूस कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। शारिक ने उसके हाथ खोल दिए। वो अपनी कलाइयां सहलाने लगा। शारिक ने पूछा, तुम लोग इन्हीं पहाड़ों में घूमते रहते हो? खाने का सामान कहाँ से लेते हो और काम क्या करते हो? वो बोला, हम खाना बदोश लोग हैं, थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर करते रहते हैं। हम साल में 1-2 मरतबा पाकिस्तान भी जाते हैं, यहाँ से कुछ सामान ले जाकर वहाँ फरोख्त कर देते हैं, बस इसी तरह हमारा गुजारा होता है। शारिक बोला, यहाँ से क्या चीज पाकिस्तान लेकर जाते हो? हेरोइन? कबायली ने बेखौफी से कहा, हाँ, इससे ज्यादा मुनाफा बख्श और कोई चीज नहीं है। कम से कम वजन, ज्यादा से ज्यादा कीमत। इसे अपने सामान में छुपाया भी आसानी से जा सकता है। शारिक ने पूछा, हेरोइन कहाँ से लेते हो? वो बोला, वजीरिस्तान की सरहद के करीब कई फैक्ट्रियां हैं जहां हेरोइन तैयार होती है, लेकिन पहाड़ों में छुपी हुई इन फैक्ट्रियों को तलाश कर लेना आसान नहीं है, और फिर हर फैक्ट्री की हिफाजत के लिए उन लोगों ने बड़े सख्त इंतजाम कर रखे हैं। शारिक बोला, ठीक है, हम भी हेरोइन की फैक्ट्रियों की तलाश में ही निकले थे। अभी तक हम किसी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जो भी फैक्ट्री हमें मिलेगी हम उसे तबाह कर देंगे। शारिक की ये बात सुनकर समीना और नौलखा चौंके बगैर न रह सके। वो उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन बाद में समीना ने शारिक को घेर लिया। शारिक ने उसके सवाल के जवाब में गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ समीना, मैं कई रोज से सोच रहा हूँ कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इन पहाड़ों में क्यों घूम रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए और क्या लेने आए थे। वो खामोश हुआ, फिर बोला, दरअसल लालच इंसान को कभी एक मकाम पर टिकने नहीं देती। वो ऊपर से ऊपर जाना चाहता है, हम भी ऊपर ही जाना चाहते थे। लालच में आकर हाजी का कहना मान लिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, वरना उस खबीस ने हमें ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हम इन वीरान पहाड़ों में ठोकरें खा रहे हैं, कदम कदम पर मौत का सामना है। 1-2 नहीं, कई मर्तबा मौत के मुंह से निकले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान पहुंचकर अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। अब तक हम मौत बांटते रहे हैं, अपने जाती मफाद के लिए मासूम लोगों के खून में जहर घोलते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम ये जहर बेचने वालों को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम हाजी से निपटेंगे। समीना बोली, तुम्हारे इन ख्यालात पर मुझे हैरत हो रही है। एक हाजी को खत्म करोगे तो उसकी जगह 10 और आ जाएंगे, और फिर तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम भी इसी कश्ती के सवार हो। तुम अब तक जो कुछ कर चुके हो, क्या एक हाजी को खत्म करके इसकी तलाफी हो सकती है? शारिक बोला, मैं अपने आप को बेकसूर और बेगुनाह नहीं कहता, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि मैंने ये काम अपनी खुशी से नहीं किया। मुझे गलत और पुरखा रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया था। लेकिन समीना ने उसकी बात काटी, बोली, लेकिन अब तुमने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है वो इससे ज्यादा पुरखार है। तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, तुम्हें इसका तजुर्बा है, क्या अब तुम ऐसा कर सकोगे? शारिक बोला, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है और मुझे इस पर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल हमने अब तक जो कुछ भी किया गलत किया। मैं ये एतराफ करता हूं कि मैंने अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी पूरी कौम को नुकसान पहुंचाया। उन जवानों के खून में जहर घोला है जिन्होंने कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करूंगा। समीना बोली, मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाजी जैसे दौलत के पुजारी तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। शारिक ने पुरज़म लहजे में कहा, अब कोई हाजी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। समीना ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा, बोली, क्या तुम मेरे नुकसान की तलाफी भी कर सकोगे? शारिक चौंक गया।
बोला, तुम्हारा नुकसान? समीना बोली, हाँ, मैं एक सीधी सादी लड़की थी, एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता थी, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या तुम मेरा वो मकाम मुझे वापस दिला सकते हो? मेरी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो? मेरे माँ बाप की जो रुसवाई हुई है उसकी तलाफी कर सकते हो? शारिक खामोश रहा। उसके पास समीना की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो संजीदा हो गए। तुम्हारी खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। वो खामोश हुई, फिर बोली, हम चाहे कुछ भी कर लें, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। इंतकाम लेने के लिए हमने खुद वही सब कुछ शुरू कर दिया था जो हमें नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो मौत के सौदागरों से जंग शुरू कर दी और दूसरी तरफ कानून के खिलाफ महाज खोल लिया। दो बड़ी कुव्वतें हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं, कानून और ये मौत के सौदागर। इन सौदागरों से तो शायद हम निजात हासिल कर लें, लेकिन कानून हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसे हमारी तलाश हमेशा रहेगी। शारिक ने कहा, कानून की मुझे परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले मैं मौत के इन सौदागरों से दो दो हाथ करूंगा, जिनकी वजह से आज हम अपने घर से हजारों मील दूर इन बंजर और वीरान पहाड़ों में ठोकरें खाते फिर रहे हैं। समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, एक बात कहूं शारिक? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, हाँ कहो। समीना बोली, वैसे तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। उठने को दिल नहीं चाह रहा, बड़ी थकन हो रही है। रात का बाकी हिस्सा यहीं गुजार लें, सुबह आगे चलेंगे। शारिक बोला, यकीन तो आने वाला वक्त दिलाएगा। मेरा ख्याल है अब हमें आगे चलना चाहिए। शारिक ने कहा, उस कबायली के कहने के मुताबिक दरिया यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर है। हम दरिया पर पहुंचकर आराम करेंगे। मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। समीना उठते हुए बोली, खाया तो हमने भी कुछ नहीं है। दरिया पर पहुंचकर प्यास तो बुझा सकते हैं। 10 मिनट के बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए।